Believe you can and you're halfway there. This is the famous quote by Theodore Roosevelt, the former US president, and this story is also full of inspiration. This story is of Jeet Sanghavi, who was earlier in the Indian boxing camp and now she is a successful coach and trainer. Box Era's head coach and founder, Jeet Sanghavi, has a bachelor's and master's degree in health and fitness. She is an exercise physiologist, sports medicine, and advanced nutrition expert with several certifications in disciplines such as CrossFit, kettlebell, personal training, and mountaineering. Coach Jeet is not just a fitness trainer but a sports choreographer, boxing coach, body transformation specialist, and has designed athletic training for celebrities such as Priyanka Chopra, who went through her regimen for the movie Mary Kom. Since 2010, Jeet has trained many national and international level athletes, both amateur and professional. Established in June 2019, Box Era is the only women led fitness center of India and certainly an oasis for athletes and disciplined enthusiasts. What age were you when you first started this? Do you remember something particular about that day? I decided to open my own studio in 2019. Earlier, I used to be a fitness director in other branches and good gyms in India, and even I was a coach that time also. I have done a tremendous amount of transformation till now. I'm transforming people not just physically, like it's not just a fat to fit kind of thing, but I am dealing with people who are like suffering from severe medical issues and injuries, past injuries, and athletes who train hard, but they are not getting a proper guidance because in like India, we don't have scientific coaches and. They don't understand that especially India is a very diversified country where people come from a very different background. Like I myself is from a Gujarati background where none of my family member ever played sports. So even though when I used to be an international athlete, I used to play tennis, I used to do mountaineering, I used to do boxing, I was in Indian camp in boxing for like so many years. But even though I was the hard, I still remember there are a lot of people who talk about me till now, give my example that I used to be one of the hardworking athlete they ever seen. Even my coaches, like their in the Indian camp coaches also. Like other athletes used to work out like for 4 hours, I used to work out for 8 hours, 9 hours, because I was not only focusing on my game. I wanted to, that time I used to work on my body mass index also. So like I come from a background where my heredity is like too bad, my genetics are bad. So I used to work a lot, I work hard a lot, and I was looking for a coach who can, like push me and who can give me a right training where like if he works well, or if he use some scientific training methods, I think I would have played Olympics also. So that was the time where I suffered a lot. More than positive side, I was just taking a lot of bad experiences. I was suffering from a lot of injuries. I have done a lot of because of wrong training. I have gone through a lot of surgeries. So but still I was not giving up upon on that kind of things, that I should leave and everything, but I was doing a lot of hard work. But like again I said, if you want to transform, or if you want to perform somewhere, you need scientific knowledge, you need scientific method to create a specific kind of champion. So I think after a point, after so many years of hard work, I have decided that no, now I don't want to play anymore, because I was suffering from a lot of health issues and injuries and everything. So then I decided that I will go from my higher studies, and I went to Australia and New Zealand for my higher studies in fitness and health, nutrition, sports medicine, and everything like that. uh, and then I right now I'm transforming a lot of people. I'm not just transforming people from fat to fit kind of things. I am actually dealing with medical issues, severe medical issues, and depression, and many other health issues. And I think right now whatever clients I'm getting, they are mostly recommended from the doctors only. So this is my expertise. Tell us about the whole journey of this gym. Before Boxera, I was working as a fitness director and a coach, and I was handling a lot of branches in India.
Because I was overly qualified as a coach, I got this position of fitness director, and I was having a lot of trainers and coaches under me, and I was too young. And young was not the only barrier, but like in India, it's a very stereotypical mentality that fitness industry is mostly male dominating, and women working on a superior position is not a right thing. So when we came here, the gyms people who gyms जिनके भी थे, they gave me this position because they thought that I am perfect for this kind of position. But एक बैरियर सिर्फ ये नहीं था कि आई वॉज यंग, बट ये बैरियर भी था कि मैं फ़ीमेल हूँ, बिकॉज फिटनेस इंडस्ट्री जो है वो मोस्टली मेल डोमिनेटिंग है। और हम जब आए थे, ये हमारे लिए एक सबसे बड़ा जो बैरियर था वो सिर्फ ये नहीं था कि हमें मतलब जो कोचेज़ है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि मी एज़ अ फिटनेस डायरेक्टर। बट जो सबसे बड़ा टास्क था वो ये था कि उस टाइम पे जो ट्रेनर्स होते भी थे, फीमेल ट्रेनर्स होती भी थी, वो जुम्बा करवाती है, पिलाटेस करवा लेती थी, जुम्बा इस योगा एंड ऑल दैट, इससे ऊपर लोग सोच नहीं पाते थे। और ये बहुत बड़ी फ़ाइट भी थी। सो व्हेन वी केम, हमने बहुत फ़ाइट लड़ी है। एंड नॉट जस्ट वी, आई मीन इट्स नॉट अ फिजिकल फाइट, इट्स जस्ट that we worked so hard that कुछ टाइम तक we just worked on results, and slowly people started accepting us. But ऐसा भी होता था कि because I was having this kind of expertise, I was dealing with lot of medical issues and everything, and I was successfully giving results. So ये भी हो जाता था कि that time lot of males, जो पहले ये mentality थी कि जिसकी बॉडी है, जिसके बाइसेप्स अच्छे हैं, जिसके जिसके एब्स है, वही मतलब उसी के पास ट्रेन करना चाहिए, बेशक उसके पास कोई नॉलेज ना हो। इन माई लैंग्वेज आई कॉल देम फिटनेस मॉडल्स और एथलीट्स। दे आर नॉट कोचेस, बिकॉज कोचेस को बॉडी की ज़रूरत नहीं होती। कोचेस बॉडी को क्रिएट करते हैं अकॉर्डिंग टू बॉडी टाइप्स एंड हेरिडिटरी एंड जेनेटिक्स एंड एवरीथिंग. When we came here, we gave results, and then slowly people started accepting it. Again, ऐसा भी बहुत बार होता था कि कहीं सारे males were coming forward to train under me. They were very happy because they used to say कि मैम हमने पहले बहुत लोगों के साथ ट्रेनिंग करी है, but we never got this kind of results, and they were using some सब्सटेंसेस जो नहीं सही होते हैं एंड ऑल दैट। मतलब करते हैं जब एक कोच को नॉलेज ना हो तो वो फिर रिजल्ट्स के लिए कुछ भी उल्टे चीज़ें करता है, जो उसे नहीं पता होता कि इसका कितना साइड इफ़ेक्ट हो सकता है या कितने डैमेज कर सकता है वो एक क्लाइंट्स को या एथलीट को। सो बट अगेन जो लोग मेरे अंडर ट्रेनिंग करते थे उनको वॉशरूम में, जैसे मेल वॉशरूम होते थे, उसमें जाके दूसरे क्लाइंट्स, मेल क्लाइंट्स या दूसरे कोचेज़ उनको जाके बहुत परेशान करते थे कि मेल कोचेज़ मर गए हैं क्या, तुम फीमेल्स के पास कर रहे हो, ऑल दैट। बट आई वॉज फॉर्चुनेट विद माई एथलीट्स। लाइक आई ऑलवेज से कि मैं बेशक इसमें अनफॉर्चुनेट थी कि मुझे अच्छे कोच नहीं मिले, बट मुझे हमेशा अच्छे एथलीट्स और क्लाइंट्स मिले हैं। तो दे वर लाइक वो लोग मेरे लिए स्टैंड ले रहे थे। इट वॉज अ बहुत ही बड़ा बैरियर क्रॉस करना था, बट दे वर स्टैंडिंग देयर विद मी बिकॉज दे वर गेटिंग रिजल्ट्स जो उनको कभी नहीं मिले थे। एंड ऐसी चीज़ें उनकी ठीक हो रही थी जो डॉक्टर्स ने भी कह दिया था कि दे कांट एवर, आई मीन, come out of this kind of situation. So and they used to say कि like I always say कि जो सर्जन्स होते हैं या गायनेक होते हैं या जो भी इस तरीके के डॉक्टर्स होते हैं, वी नेवर थॉट अबाउट इट कि यार मेल डॉक्टर है तो वो कैसे फीमेल का इशू सॉल्व कर सकता है। इट्स जस्ट अबाउट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन। सो सर्जरी करने के लिए एक डॉक्टर को खुद की सर्जरी नहीं करनी होती, इट्स अ नॉलेज। सो we fought lot of battles and I think we successfully did that. But उस पूरी जर्नी में हो ऐसा रहा था कि even though it was on a positive side because we were working on results and we never wanted this kind of things कि नहीं female है male है, but we just wanted कि if we deserve we should get our own position also. We should also stand out in this fitness industry. No matter male है या female है, if they are qualified, they deserve, then you should accept them. सो ये चीज़ें हम लोग काफ़ी अच्छे से कर रहे थे। बट अगेन काफ़ी एक और जो प्रॉब्लम मेरे साथ होता था, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड वेयर आई यूज टू बी एन एथलीट होल माई लाइफ एंड like I come from a background where it's not like a trainer kind of thing, it's a coaching kind of thing where I believe I have my own principles.
I have my own protocols. It's not like anybody come here and train under me. But because I was working under someone as a fitness director, I used to have a lot of pressure for revenues and everything. So आई यूज़ टू थिंक कि मेरे प्रोटोकॉल्स और जो मेरे प्रिंसिपल्स है इसमें काफ़ी सफ़र हो रहे हैं। मुझे ये लगता था कि डिसिप्लिन होना चाहिए, एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक ट्रेनिंग का प्रोटोकॉल होना चाहिए। नॉट ओनली दोज क्लाइंट्स और एथलीट्स जो सिर्फ मेरे अंडर ट्रेन कर रहे हैं, जो मेरे 2-3 टीम मेंबर्स थे उस टाइम पे, उनके अंडर कर रहे हैं, बट आई यूज़ टू थिंक कि हमें इस तरीके से चेंज लाना चाहिए कि जो इंडिया के अंदर एक ट्रेनिंग का मिसकॉन्सेप्शन है, एक ट्रेनिंग स्ट्रैटेजी नहीं है, एक प्रोटोकॉल नहीं है, प्रोग्राम नहीं है, जो ट्रेंड चलता है वही सब लोग करते रहते हैं। सो आई वॉज फाइटिंग फॉर दैट एंड आई थिंक उस वजह से मेरी काफ़ी फाइट हो रही थी कि आई वॉज नॉट एबल टू फोकस ऑन माई मिशन, बिकॉज मेरा तो पहले से मिशन यही था कि आई वॉन्टेड टू हील पीपल एंड आई वॉन्टेड टू हेल्प पीपल एंड आई वॉन्ट टू क्रिएट एथलीट्स एज अ चैम्पियन। बिकॉज आई थिंक हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, बहुत पैसा लगाते हैं, एथलीट्स है, क्लाइंट्स हैं, बट उनको रिजल्ट्स ही नहीं मिलते। बिकॉज यू नो, लाइक आई ऑलवेज से कि फिटनेस मॉडल्स और बेस्ट एथलीट्स को मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बट अगेन बेस्ट एथलीट्स और बेस्ट फिटनेस मॉडल्स कभी भी इश्यूज़ को सॉल्व नहीं कर सकते बिकॉज दे आर एथलीट्स। सो उसके लिए कोचिंग, स्टडीज़ बहुत ज़रूरी है, क्वालिफिकेशन ज़रूरी है, एक्सपीरियंस ज़रूरी है, और हर एक डिफरेंट बॉडी के ऊपर डिफरेंट तरीके से ट्रेनिंग करवाना भी बहुत ज़रूरी है, जो यहाँ नहीं होता था। सो मुझे लग रहा था कि मेरे जो प्रिंसिपल्स हैं वो कहीं ना कहीं सफ़र हो रहे हैं, मुझे एडजस्ट करना पड़ता था एंड आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ दैट। एंड देन जब मुझे लगा कि नो, आई एम नॉट हियर फॉर यू नो ओनली मनी थिंग, आई वॉन्ट टू मेक अ चेंज, आई वॉन्ट टू यू नो डू सम काइंड ऑफ रिवॉल्यूशन, एंड वो नहीं हो पा रहा था बिकॉज एक तो फीमेल वाला प्रॉब्लम आ रहा था और दूसरा अगेन इतना सीरियसली कुछ करना नहीं चाहता। बट लाइक आई ऑलवेज से कि जैसे मेडिकल फील्ड है वैसे ही हेल्थ और फिटनेस है। हेल्थ और फिटनेस इतना इजी नहीं ले सकते कि आप किसी भी एरे गहरे से ट्रेनिंग करके आप, क्योंकि इसमें जितनी इंजरीज होती है, जितने मेडिकल इश्यूज हो जाते हैं, अगर गलत ट्रेनिंग करता है कोई तो उसको इतना सीवियर प्रॉब्लम हो सकता है कि वो सर्जरी उसकी हो जाएगी, जैसे मेरे साथ हुआ है। उसको मेंटल ट्रॉमाज इतना ज़्यादा हो जाते हैं कि वो बहुत सीवियर डिप्रेशन में जा सकता है। तो ये सब चीज़ें हमारा एक प्राइमरी साइड है। प्राइमरी सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर हम इसे बेटर करेंगे तो हमें उसके बाद हमें मेडिकल इंडस्ट्री में जाने की ज़रूरत पड़ेगी। बट पीपल डोंट टेक इट वेरी सीरियसली, बट स्लोली इट इज़ चेंजिंग बिकॉज you know people tried lot of things, and when they went to an expert and a right coach, they got to know कि you know you don't need to work hard, you need to work smart, and that is why you know this is changing, but yeah, it will take some time. So and this is how Boxera's journey came into the picture, where I have decided that okay, now I'm not going to work under any kind of I don't want to work under any kind of you know other gyms and all that. So I came up with my dream studio, which is Boxera. And in Boxera, it is like when we opened it, there are a lot of people who were interested to join it, but like I said that even though I'm in a fitness industry, my protocols and my principles are like just like a sports. Like I don't take any kind of nonsense. I always believe discipline is important. I'm looking for a client or an athlete, even though they are paying, they should be, you know, have a athlete or student kind of you know mindset. Then only we train them. So it's like at Boxera we always say that जिनको results नहीं मिलते हैं कई, वो आखिरी में बॉक्सेरा में आते हैं, और जिन जो थक गए हैं उनके लिए है बॉक्सेरा. सो and then we did lot of transformations in Boxera, and it we are successfully doing it. And fortunate thing is that यहाँ पे कोई problem नहीं आ रहा है because it is our own thing. But again the journey of you know battles and struggles are still there because now it is our, and we are running it successfully. So there are a lot of things going on, still going on, but I'm sure like we don't care about it. We just want you know to work on our individual levels, and we are doing it very well now. We have heard about the dark room in your gym. Tell us about it. So, dark room therapy, yes, we do have this kind of concept in Boxera, but it's not just you know that we are training under blue lights or something like that, or it's something very fancy. It's a completely psychological, you know, it's a psychological thing
where like it is my personal experience. When I was in my athletic background, I was suffering from a lot of mental traumas, and you know, lot of, you know, my seniors and all that, they used to like do a lot of bully with me and all that. uh, and I was like, I became that kind of person because of, you know, no, I was not getting a right coach. I was just not able to give up, and I was fighting my battle, but I was scared, I was depressed, and I was like, I don't wanted to train in front of other athletes. I have lost my all confidence because of wrong training and, you know, wrong surrounding. So what I used to do that time is that I used to complete my training in like around 4 o'clock in the morning, and evening I used to go for my training around 7 o'clock or 8 o'clock, like when other athletes used to go to their home and everything. So एंड इवन लाइक व्हेन मेरी फाइट्स आती थी, तो मैं जब अपनी ट्रेनिंग करती थी तो मैं किसी ट्रक के पीछे छुप कर करती थी, या जस्ट इस वजह से कि लोग मुझे जज करते थे, बुली करते थे, तो मेरा डिप्रेशन, मतलब मैं ऐसे, मेरा कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया था. सो आई वॉज हाइडिंग माई सेल्फ, एंड सो इस तरीके से आई बॉट दिस डार्क रूम थेरेपी का जो कॉन्सेप्ट है वो, कि even at Boxera, not only at Boxera, but at every studio and gyms, like there are a lot of clients and athletes जो कुछ करना चाहते हैं, बट बिकॉज उनकी अपनी एक लाइफ में, अपने एनवायरनमेंट में, सराउंडिंग में उनके साथ इतना कुछ हो जाता है कि उनमें वो कॉन्फिडेंस ही नहीं बचता कि वो जिम में जाके ट्रेनिंग कर पाए. एंड दे थिंक सब उनको जज करेंगे, या इस तरीके से कई बार हम ऐसी सिचुएशन से गुजरते हैं. सो एट बॉक्सेरा वी बॉट दिस कॉन्सेप्ट कि हम इस तरीके से डार्क रूम में ट्रेनिंग कराते हैं, कि वेयर वी ट्रेन देम इन डार्क, एंड वो डार्क में इतना उनकी इस तरीके से वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं कि जब वो ट्रांसफॉर्म कम्प्लीटली हो जाते हैं तो दे आर लाइक, दे शाइन, एंड दे आर लाइक, वो उस इतने डार्क रूम में थे ट्रेनिंग करके, वो इतने ब्राइट हो जाते हैं कि नाउ दे आर नॉट, दे डोंट फियर एनी वन, दे हैव अ अमेजिंग कॉन्फिडेंस. And this dark room is an amazing concept. So there are a lot of athletes जो transform हुए हैं, now they are like, they उनको हम recognize ही नहीं कर सकते कि जब उन्होंने join किया था they were some different person and now they are different people. So yeah, this is the main concept of dark room therapy. How difficult is it to motivate people for fitness in this COVID environment? सो कोविड के टाइम पे इवन मेरे को खुद को कोविड हुआ था. आफ्टर वैक्सीनेशन एंड कोविड आई वाज सफरिंग फ्रॉम लॉट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ इश्यूज, जो मुझे कभी इतना ज़्यादा नहीं हुआ. सो बट येस, लाइक आई ऑलवेज से कि एथलीट्स है, फिटनेस मॉडल्स है, उनको लोग देखते हैं और फिर डीमोटिवेट हो जाते हैं कि इनकी बॉडी एक जैसे क्यों रहती है, बट दे डोंट अंडरस्टैंड दे हैव अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ बॉडी टाइप, एंड nobody is there to talk about them, क्योंकि उनकी तरह जब लोग कनेक्ट नहीं होंगे तो ऑब्वियसली लोगों को डिप्रेशन तो होगा. सो इवन आई कम फ्रॉम द बैकग्राउंड जहाँ पे मेरे जेनेटिक्स भी बहुत वर्स्ट रहे हैं, एंड व्हेन आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट कि दिस इज़ हाउ आई एम फीलिंग, एंड 15 kgs गेन किया था मैंने कोविड और वैक्सीनेशन के बाद में, एंड आई वॉज हैविंग नो स्ट्रेंथ, आई वॉज नॉट एबल टू वर्क आउट फॉर like 2 days. But again, like in COVID situation, the positive thing about us was that कि हमें ज़्यादा लोग अप्रोच इसलिए कर रहे थे क्योंकि हम पहले भी इसी कॉन्सेप्ट पे चल रहे थे. वी वर डीलिंग विद पीपल हैविंग मेडिकल इश्यूज एंड इंजरीज एंड हेल्थ इश्यूज एंड एवरीथिंग लाइक दैट. सो व्हेन कोविड केम वी गॉट लॉट ऑफ क्लाइंट्स, बिकॉज उस टाइम पे कई सारे लोगों को एकदम से फिटनेस में इंटरेस्ट आने लगा, बिकॉज डॉक्टर्स बोलने लगे कि आपको थोड़ा हेल्थ और फिटनेस पे ध्यान देना पड़ेगा, इम्यूनिटी वीक हो गई है. कोविड और वैक्सीनेशन के बाद बॉडी 360 डिग्री में टर्न हुई है. वो वाले जो पहले जो चल जाता था कि ट्रेंड है 1000 कैलोरीज बर्न करो, इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लो, केटो डाइट कर लो, कोई क्रॉसफिट कर लो एंड एवरीथिंग लाइक दैट, पहले ये चल जाता था बिकॉज पहले हमारी बॉडीज़ इस जोन में नहीं आई थी. बट अब कोविड के बाद हमारी बॉडी भी एक डिफरेंट तरीके से रिएक्ट कर रही है, नो मैटर वो एथलीट हो या कोई और पर्सन हो या मैं खुद ही क्यों ना हो. सो उसके बाद में जब कोविड आया तो वी गॉट लॉट ऑफ क्लाइंट्स, बिकॉज वो जहाँ पे पहले ट्रेनिंग करते थे उनको इश्यूज होने लगे. और लाइक आई सेड कि एथलीट्स और फिटनेस मॉडल्स जो होंगे वो आपको उतना ही नॉलेज देंगे जितना उनको पता है या वो जिस तरीके से खुद ट्रेनिंग करते हैं. सो एट बॉक्सेरा हम पहले भी इसी तरीके से
स्ट्रैटेजी के साथ में ट्रेनिंग करवाते थे. वी नेवर बिलीव इन ट्रेंड एंड वी नेवर बिलीव इन according to me CrossFit is not bad, according to me high intensity is not bad. No, none of the training method is wrong, but again हर एक बॉडी टाइप पे हर एक ट्रेनिंग मेथड काम नहीं आती है. अगर वो ट्रेनिंग मेथड अगर उस स्पेसिफिक पर्सन के ऊपर बिलोंग नहीं करती है तो फॉर श्योर उसको इंजरीज होगी, उसको मेडिकल इश्यूज हो जाएंगे. So for us at Boxera, we got a lot of clients during COVID because they got to know कि right training is really very important than hard training. So I think we never got that kind of problem in COVID situation. Is this your childhood dream or something you just fell into? Childhood dream was to become a Air Force pilot, and I was successful in that. I've successfully given my exams, but last moment में मेरा I Vision 6x6 नहीं था, उस वजह से I got failed. And then I wanted to become an Olympic champion, so I was playing on international level in lawn tennis. I did mountaineering, and then I wanted to become an Olympian in boxing also. But like I said, during this journey I got a lot of worst experiences. I suffered a lot. I got a lot of injuries. I got surgeries and everything. So ये जितना भी मेरा जर्नी रहा ड्यूरिंग माय स्पोर्ट्स जर्नी जो मेरी रही, उस टाइम पे मेरा जो भी एक बैकग्राउंड रहा वो बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल था. आई वॉज गोइंग थ्रू लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज़. सो आई थिंक कोच तो मुझे कभी बनना ही नहीं था. बट जब मैं हमेशा ये कहती रहती हूँ कि आई वॉज इन अ सर्च ऑफ अ गुरु, एंड देन एंड में मैं खुद ही कोच बन गई, मैं खुद ही गुरु बन गई. सो आई थिंक आई वॉज डेस्टाइन्ड टू बिकम अ कोच, एंड दैट्स वाई आई थिंक आई एम गेटिंग लॉट ऑफ क्लाइंट्स एंड एथलीट्स हु जो भी मेरे पास क्लाइंट या एथलीट आता है वो फॉर श्योर उनको रिजल्ट्स तो मिलने वाला है, बट दे कनेक्ट विद मी बिकॉज वो जितने भी लोग आते हैं उनका एक जो एक एक्सपीरियंस है जो उनके साथ हो रहा है वो मेरे साथ ऑलरेडी हो गया है, तो आई कैन कनेक्ट विद देम वेरी इजीली. सो आई थिंक दिस इज़ व्हाई आई केम इन दिस कोचिंग फील्ड. Future goals? Anything in specific you want to achieve and why? Well, my future dream is that कि when I came in this industry, I know मेरा देखने का नज़रिया बहुत different था, मेरा mindset बहुत different था, but I successfully did it, and I think अभी कुछ % में people are changing. Like मेरे पास ऐसे भी लोग आते हैं, like I call them dark athletes, बट वो ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जिन्होंने कभी स्पोर्ट्स नहीं खेला होता है. बट आई ऑलवेज कॉल देम डार्क एथलीट्स बिकॉज आई पर्सनली फील हर एक पर्सन के अंदर एक एथलीट होता है. एंड लाइक आई ऑलवेज से कि हमको जो सिखाया जाता है, हम जिस सराउंडिंग में होते हैं हम वैसे ही बनते हैं. तो मेरे पास जितने भी लोग आते हैं मोस्टली ऐसे लोग आते हैं, स्पोर्ट्स से तो आते ही है फॉर श्योर, बट ऐसे भी लोग आते हैं जिन्होंने कभी डिसिप्लिन नहीं देखा, कभी उन्होंने स्ट्रिक्ट कोच नहीं देखा, उन्होंने राइट ट्रेनिंग नहीं देखी, बट बिकॉज दे आर गेटिंग रिजल्ट सो ईजीली एंड दे आर उनका माइंडसेट चेंज हो रहा है कि इस तरीके से एक स्ट्रिक्ट कोच होने के बाद. बट स्ट्रिक्ट कोच जो आपकी केयर करता है, आपको जेन्युइनली आपको ट्रांसफॉर्म करना चाहता है. सो अभी जितने भी लोग हमारे पास है दे आर चेंजिंग एज अ पर्सन. सो वो सिर्फ फिजिकली चेंज नहीं हो रहे बट दे आर बिकमिंग अ बेटर पर्सन. एंड आई पर्सनली फील कि व्हेन समबडी इज कमिंग टू मी एज अ, इफ समबडी वांट्स मी टू बी अ कोच, लाइक ऑलवेज से कि कोच जो होता है वो एथलीट्स जो होते हैं वो कोच के रिफ्लेक्शन होते हैं. सो आई वॉन्ट देम टू बी अ बेटर पर्सन, आई वॉन्ट देम टू बी अ हेल्दी फिट, एंड दे शुड बी फीमेल हो या मेल हो, दे शुड नेवर गिव अप. एंड आई थिंक वो सक्सेसफुल भी हो रहे हैं बिकॉज वैन यू डू राइट ट्रेनिंग आपके अंदर बहुत डिफरेंस आ जाता है. मेरे पास में इतने सारे एथलीट्स और क्लाइंट्स हैं जो जब आए थे तब उनमें कुछ भी कॉन्फिडेंस नहीं था, बट अभी दे आर लाइक डूइंग वेरी वेल. सो मेरा ड्रीम बस ये है कि इफ़ आई गेट अ चांस आई वॉन्ट टू चेंज दिस इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री वेयर मैं जैसे फिटनेस इंडस्ट्री में बहुत कॉन्सेप्ट है कि कूल होना, ट्रेनर्स, मज़े हो रहे हैं, मस्ती हो रहे हैं, सोशल. आई एम अगेंस्ट इट बिकॉज फॉर मी फिटनेस इंडस्ट्री एकदम बहुत सीरियस इंडस्ट्री है जो मजाक की बात नहीं है. ठीक है, लोग फिट होते हैं, वो मज़े में वो चीज़ का स्ट्रक्चर उस तरीके से क्राउड बना देते हैं, बट आई एम अगेंस्ट इट.
आई ट्रूली बिलीव कि जितना एक डॉक्टर की जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतनी ही एक कोच की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड अगर राइट ट्रेनिंग इस तरीके से मेजरली लोगों को मिलेगी तो दे विल चेंज। एंड आई थिंक हमारा इंडिया मतलब हमारी कंट्री भी एक राइट ट्रेनिंग से, क्योंकि माइंडसेट चेंज होगा लोगों का तो लोग भी डिफरेंट तरीके से सोच पाएंगे। बिकॉज उनको ये भी उन्हें ये भी समझ में आ जाएगा कि if my coach or my the people who are training them is coming from this kind of background and उन्होंने इतना कुछ लिया है तो they can also do this। एंड भी हम लोग सब बहुत सिमिलर है और हम शायद सब लोग एक ही तरीके के प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। सो आई थिंक दिस इज़ माई ड्रीम टू चेंज फिटनेस इंडस्ट्री एंड आई वांट कि लोगों का माइंडसेट चेंज हो कि सिर्फ हार्ड वर्क या कैलोरीज या इंटरमिटेंट फास्टिंग या केटो डाइट जो भी ट्रेंड में होता है उसके पीछे ना भागकर हम एक राइट ट्रेनिंग को अगर फॉलो करेंगे तो हम हमारे कंट्री के अंदर मेडिकल इश्यूज़ जो है वो प्रॉब्लम्स जो है वो कम हो जाएंगे। हम हेल्दी पॉपुलेशन में भी काउंट होने लग जाएंगे। हम बेटर इंडिया बना सकते हैं इस तरीके से। सो आई थिंक दिस इज़ माई फ्यूचर गोल। How important to nutrition to you? Will you strongly suggest your clients follow a better diet to improve their fitness goals? Well, according to me, I always tell my clients and athletes कि अगर if they want result and if they are looking for a result, they should follow a specific diet plan। और आपको दूसरों को देख के डाइट नहीं कभी भी फॉलो करनी चाहिए। बिकॉज हर एक बॉडी टाइप डिफरेंट है और स्पेशली इन कंट्री लाइक इंडिया, हमारे इंडिया में बहुत ही डाइवर्सिटी है, बॉडी टाइप्स बहुत डिफरेंट है, हम सब बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। सो न्यूट्रिशन इज़ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ट्रेनिंग जितनी इम्पॉर्टेंट है उससे कहीं ज़्यादा न्यूट्रिशन है। अगर न्यूट्रिशन ही नहीं होगा तो रिकवरी नहीं होगा, न्यूट्रिशन नहीं होगा तो आपका मसल गेन नहीं होगा, न्यूट्रिशन नहीं होगा तो फैट लॉस नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म आपका बर्न नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म अप नहीं होगा। मतलब कई सारी चीज़ें हैं, इसीलिए न्यूट्रिशन फॉलो नहीं करते लोगों को डायबिटीज़ हो जाता है, कई सारे हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं। सो एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड। अगर न्यूट्रिशन फॉलो करते हो तो यू विल बी एबल टू डू राइट ट्रेनिंग एंड प्रॉपर ट्रेनिंग। जो आपका जो भी प्रोग्राम है वो आप तभी फॉलो कर पाओगे जब आप न्यूट्रिशन करके रिकवर होके जब दूसरे दिन वर्कआउट करने जाओगे तभी आपके रिजल्ट्स आ पाएंगे। तो न्यूट्रिशन इज़ रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट न्यूट्रिशन आप कितना भी वर्कआउट कर लो, ये मैंने भी पहले करा है जब आई वॉज एन एथलीट। आई यूज़ टू वर्क, आई मीन एज आई सेड कि मेरा 8 आवर्स में वर्कआउट करती थी। सिर्फ गेम का वर्कआउट नहीं, गेम के साथ में मुझे अपना बॉडी का फैट हटाने का भी अलग से वर्कआउट करना पड़ता था। मैंने नहीं खाया, न्यूट्रिशन पे कभी ध्यान नहीं दिया तो उसकी वजह से मुझे कितने इश्यूज़ हो गए, इंजरीज़ हो गई, सर्जरीज़ हो गई। सो विदाउट न्यूट्रिशन यू कांट डू एनीथिंग। न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जस्ट लाइक एक्सरसाइज एंड फिटनेस। What are your thoughts on a vegan lifestyle? वेल बिकॉज इंडिया के अंदर वेगन डाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। आई एम माई सेल्फ आई एम अ जैन। सो अगर कोई प्रॉपर तरीके से वेगन डाइट को फॉलो करता है तो फॉर श्योर उसको भी उतने ही रिजल्ट्स मिलेंगे जितने रिजल्ट्स एक नॉन वेगन डाइट वालों को मिलता है। बट लाइक आई सेड कि क्योंकि डाइवर्सिटी है तो पीपल ऑब्वियसली आई गट लॉट ऑफ क्लाइंट्स जो वेगन डाइट करके ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं और एज सच कोई इशू नहीं है। बस ये है कि कुछ चीज़ें आपको सप्लीमेंट करनी पड़ेगी। बिकॉज वेगन डाइट में कुछ जैसे प्रोटीन सोर्सेज होते हैं, वी हैव गुड प्रोटीन सोर्सेज बट अगेन इट्स सेकेंडरी। सो वहाँ पे थोड़ा बहुत आपको सप्लीमेंट्स ऐड करना पड़ जाता है। बट इफ़ समबडी फॉलो अ वेगन डाइट प्रॉपरली तो आई थिंक रिजल्ट्स भी अमेजिंग आएंगे। और अगर एथलीट भी है, अगर वो भी वेगन डाइट फॉलो करता है तो फॉर श्योर परफॉर्मेंस अच्छे से ही आएंगे। बट वही है कि खाना क्या है, किस तरीके से खाना है, इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट।